قوموں کے اوپر فتح. اور یہ خداوند نے اسرائیلیوں کو یہ کہا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، قوموں کو، تمام قوموں کو، جو 7 قومیں ہیں ان کے اوپر کیا کرنا ہے، فتح پانی ہے. اور جب تم ان 7 قوموں کے اوپر فتح پا چکو گے تو پورے ملک کنعان کے اوپر قابض ہو سکو گے. آمین. اور جب تک آپ ان 7 قوموں کے اوپر غالب نہیں آتے تب تک آپ کیا کریں گے، قبضہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ انہوں نے مصر سے رہائی حاصل کی اور ملک مصر سے جب نکلے، کلزم کو انہوں نے عبور کر کر وہ سارا کا سارا پیچھا جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کیا. گویا ان کا چھٹکارا جو انہیں ملا ہے یہ دلیل ہوگی کہ وہ ملک کنعان میں داخل ہو سکیں گے. جب تک کوئی مصر کے اندر ہے وہ ملک کنعان کا سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن اگر وہ مصر سے چھٹ گیا، فرعون کے ہاتھ سے چھٹ گیا، اس کے پاس امید ہے کہ وہ ملک کنعان کے اندر داخل ہو سکے. اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیابان میں سے گزرے، اور بیابان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طور پر خداوند کی پروویژن کو دیکھا، اس کے ہاتھ کو دیکھا، اس کے فضل کو دیکھا، اور من برستا تھا، چٹان سے پانی ان کو ملتا تھا، بڑے بڑے معجزات ہوئے، وباؤں سے وہ گزرے، لیکن خداوند ان کو وہاں سے نکال لایا. تو ہم بھی اسی طرح جو چھٹکارا ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملا ہے اور جو نجات خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے مہیا کی ہے، یہ کافی نہیں کہ آپ نجات یافتہ ہیں. اور اس کی کمپلیٹنس جو سلویشن یا نجات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے قبضہ کریں، ہم بادشاہی کے اندر داخل ہوں. اور ان کی ڈیسٹینیشن ملک کنعان تھی، اور اگر وہ ملک کنعان میں داخل نہیں ہوتے، بہت سارے ایسے تھے جو داخل نہیں ہو سکے، بلکہ جو سارے مصر میں سے نکلے تھے ان میں سے صرف 2 لوگ تھے، ان میں یشوع اور کالب تھے. باقی ساری نئی نسل وہ کیا ہوئی تھی، وہ داخل ہوئی. باقی سارے کے سارے بیابان کے اندر ڈھیر ہو گئے. اگر کسی شخص کو یہ مان ہے میں نجات یافتہ ہوں اور میں نے یسوع مسیح کے خون سے اور اس سے رہائی حاصل کی ہے، اور مجھے بڑے بڑے تجربات ملے ہیں، مجھے جو ہے میں نے کلزم کو 2 حصے ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے چٹان سے پانی پیا، یہ فخر ہے، میں نے جو ہے وہ بیابان میں مان کھایا، یہ فخر ہے. بڑے بڑے معجزات، تجربات ہیں جو مسیحی ہوتے ہوئے آپ کو ملے ہیں. تو یہ کافی نہیں ہیں، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ اس بات کی امید میں قائم ہیں کہ آپ آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل ہوں گے، اور اس بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے آپ بالکل ریڈی ہیں، بالکل تیار ہیں، اور ہر وقت، ہر لمحہ، 24 گھنٹے آپ کے دل و دماغ، روح کے اندر ایک ہی بات چھائی ہوئی ہے کہ میرا یہاں پر پڑاؤ یا یہاں پر میرا ٹھہراؤ تھوڑی دیر کے لیے ہے، اور مجھے ملک کنعان کے اندر داخل ہونا ہے. اور جب ملک کنعان کے اندر داخل ہوں گے آپ کو جو ہے 7 قوموں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور لاسٹ ٹائم میں نے ہتھیوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ہتھیوں کے اوپر یہ بڑی جو ہے بڑا پہاڑ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فتح پانے کی ضرورت ہے. اور ہتھیوں کا مطلب کیا ہے؟ ہتھی کا مطلب کیا ہے؟ ٹیرر، فیئر، خوف، دہشت. ٹھیک ہے. اور میں نے میڈیا کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے اس دنیا کے اندر جس کا جو بڑے رعب اور فیئر
پھیلا رہا ہے. اور یسوع مسیح نے بھی کہا جو ہے آخری دنوں میں کیا ہوگا کہ تم جنگ اور جنگوں کی کیا کرو گے؟ افواہیں سنو گے. اس طور پر خوف زدہ جو ہے میڈیا کر دیتا ہے، چھوٹی خبر کو بڑی بنا دیتا ہے، بڑی کو جو ہے وہ کسی قابل ہی نہیں کرتا. اور ایسی جو ہے چیزیں ہیں جو ہے وہ رپورٹ بھی نہیں ہوتی ہیں. چنانچہ جو ان کے جو ہے مطلب کی ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں، اس طرح کے پروگرامز جو ہے وہ نشر کیے جاتے ہیں. اور یوں ابلیس نے پورے میڈیا کے اوپر قبضہ جمایا ہوا ہے تاکہ کیا کر سکے؟ جو ہے قبضہ جما کر پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے سکے، اپنے خوف میں لے سکے، اور یوں جو ہے وہ اپنا کام بنا سکے. لیکن میں نے بتایا کہ اس کا توڑ کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے. ہم وہ جو بری خبر پھیلا کر کیا کرتا ہے؟ خوف اور افواہ پھیلاتا ہے. لیکن ہم یسوع مسیح کی خوشخبری سنا کر کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آمین. ہمیں جو ہے ہر ایک شخص کو یسوع مسیح کی خوشخبری کو سنانا ہے، ہر ایک کو یسوع مسیح کے کلام کو، اس میڈیا کو جو بائبل مقدس کی شکل میں ہے، جو ہے اس میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جو پوری دنیا کے اندر جو خوشخبری کا بول بالا کرنا ہے. آمین. اور اس سے جو ہے اس کا جھوٹ، اس کا فیئر، اس کی دہشت، اس کا خوف کیا ہوتا جائے گا؟ وہ ختم ہوتا چلا جائے گا. آمین. میرے ساتھ نکالیے استثنا کی کتاب، اس کا 7واں باب، اس کی پہلی آیت ہے. میں گزارش کروں گا کوئی آ کر سامنے پڑھے آ کے. 7واں باب، اس کی پہلی آیت. ہاللویا. استثنا 7واں باب، اس کی پہلی آیت. ارے استثنا 7واں باب، اس کی پہلی آیت سے. جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے پہنچا دے، اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو، یعنی ہتھیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور کنانیوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کو، جو 7 قومیں تجھ سے بڑی اور زور آور ہیں، نکال دے. اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے، تو تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا. تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا. تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. جرجاسیوں کو کیا کریں گے؟ فتح کرنا. ہتھیوں کے بارے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ذکر کیا. اب جرجیسیوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ قومیں ہیں جس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ ہم نے قبضہ کرنا ہے. اور آج جرجاسیوں کے حوالے سے آج بات کروں گا. اور اس کا جو مطلب ہے ڈویلنگ ان کلے سوئل. ڈویلنگ ان کلے یعنی مٹی میں رہنے والے. ہاں، کہاں پر رہنے والے؟ مٹی میں رہنے والے. تو گویا جب آپ جرجیسیوں کے اوپر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، تاکہ اس طریقے کے ساتھ آپ قبضہ جما سکیں. گویا جب آپ ڈویلنگ ان کلے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی خواہشوں سے، دنیا کی شیخی سے بھرے ہوئے ہیں. جب یوحنا کا پہلا خط اس کا 2 باب اس کی 16ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے. جب آپ جرجیسیوں کے حوالے سے آپ بات کریں گے تو یہ
इनके अंदर क्या है, जो है प्राइड ऑफ लाइफ है, इनके अंदर जिंदगी की शेखी है, इनके अंदर प्राइड पाया जाता है। तो गोया जब आप जो है जर्जिसियों की बाबत बात करेंगे तो आप ये वो माउंटेन हैं, ये वो पहाड़ है जिसे हम कह सकते हैं द माउंटेन ऑफ गवर्नमेंट, जो है जहां पर जो है हुकूमत करना, इख्तियार जो है जमाना जो है यहाँ पर पाया जाता है, और जहां पर प्राइड जो है खुलेआम आपको नजर आएगा। और आज इस दुनिया के अंदर शैतान जो है जर्जिसियों का सा रोल अदा कर रहा है, और ये जो है जर्जिसियों की कौमें किस तरीके के साथ पूरी दुनिया के अंदर वो फैली हुई हैं, यह किस तौर पर जो है जिंदगी की शेखी जो वो जिंदगियों के अंदर पाई जाती है, किस तौर पर जो है जर्जिसी जो है वो क्यों कर किस तरीके से जो है वो करप्शन के अंदर फंसे हुए हैं। आपको मालूम है कि दुनिया की जितने भी गवर्नमेंट हैं उनमें जो बुनियादी जो है सबसे बड़ा मसला वो क्या है, करप्शन। तो करप्शन किस तरीके के साथ गवर्नमेंट के अंदर पाई जाती है, और किस तौर पर जो है अखलाकी तौर पर, और किस तौर पर जो है वो नारास्ती के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं, बदखलाकी और नारास्ती और जो है जुल्म जो है वो कसरत से या कौमों के दरमियान में आपको नजर आता है। बाज़ाहिर सिविलाइज्ड जो है गवर्नमेंट आपको दुनिया के अंदर वो नजर आएंगी, लेकिन जो है जो बुनियादी चीज आप जो है कौमों और उम्मतों और मुल्कों और गवर्नमेंट के अंदर वो देख सकते हैं, वो क्या है, प्राइड, द प्राइड ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की शेखी। और ये आपको मालूम है ये प्राइड ऑफ लाइफ जो है वो किसके अंदर वो पाया जाता था, किसके अंदर ये पाया जाता है। और इस जो है माउंटेन के ऊपर, इस पहाड़ के ऊपर शैतान, अब्लीस, लूसीफर जो है वो क्या है बराबर जमा हुआ है, और इस जो कौमों के ऊपर अपने इख्तियार को, अपनी बादशाही को वो जो है वो दिखा रहा है। तो आप अंदाजा करें जर्जिसियों के ऊपर कब्जा करना ये कितना जरूरी है। इस गवर्नमेंट को जो है, जो दुनिया की गवर्नमेंट है, उसका जो सिस्टम है उसको किस तरीके के साथ तबाह और बर्बाद करने की वो जरूरत है। अगर आज जो है कलीसिया और ईमानदार जो है वो कह लीजिए कि संजीदा नहीं होंगे तो फिर या जर्जिसी क्या करेंगे, आपको वो अपनी जो है मिट्टी के अंदर जब वो गंदा कर देंगे, उस कले के अंदर, उस मिट्टी के अंदर, जो है उस ख्वाहिशों के अंदर, जो आंखों की ख्वाहिश, जो जिस्म की ख्वाहिश और जो जिंदगी की शेखी है, वो इसमें घेर लेंगे और हम दुनिया के अंदर रह जाएंगे। और वो कतई नहीं चाहता कि इस पहाड़ को वो सर किया जा सके, और वो नहीं चाहेगा कि इस कौम को जो है वो खत्म किया जा सके, इसके ऊपर कब्जा जमाया जा सके। हालेलुया। यशायाह की किताब के अंदर ये लिखा है, और लिखा है, सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शिमाली इतराफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद हूंगा। लेकिन तू पताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा, और जिनकी नजर तुझ पे पड़ेगी तुझे गौर से देखकर कहेंगे क्या यह वही शख्स है जिसने जमीन को लरजाया और ममलिकतों को हला दिया, जिसने जहान को वीरान किया और उसकी बस्तियां उजाड़ दी, जिसने अपने असीरों को आजाद ना किया कि घर की तरफ जाएं। कौमों की तमाम बादशाह सब के सब अपने अपने मस्कन में शौकत के साथ आराम करते हैं, लेकिन तू अपनी गौर से बाहर नकम्मी शाख की मान निकाल फेंका गया। तो गोया आप
ये देख सकते हैं कि किस तौर पर जो है ये प्राइड जो शैतान के अंदर, लूसीफर के अंदर पाया जाता है, जो खुदा ताला की मानद बनना चाहता है, जो उस पहाड़ पर जो है बराबर जो है विराजमान होना चाहता था कि मैं जो है बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा और खुदा ताला की मानद होऊंगा और जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा? ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया है? तो जवाब क्या है? जिंदगी की शेखी, प्राइड ऑफ लाइफ, प्राइड, फखर, घमंड जिनकी जिंदगियों के अंदर है। जर्जीसी जो है ये घमंडी, जर्जीसी कौन है? प्राइड जिनके अंदर है, जो मिट्टी से लथपथ हैं, जो है दुनिया की ख्वाहिशों से भरे पड़े हैं, जो है जिसकी बाबत खुदा ने इस्राएलियों को कहा था इन 7 कौमों में से दूसरी बड़ी कौम जो है इसकी सारी गवर्नमेंट को क्या करना है? तहस नहस कर देना है, ताकि क्या हो सके? ये जो है ये तुझ पर गाली बना सके। ये क्या करेंगे? तुझे मेरी पैरवी से क्या कर देंगे? वो दूर कर देंगे कि तू औरों और मबूदों की प्रस्तुत कर सके। और आज दुनिया के अंदर जो है मुख्तलिफ कौमों के ऊपर जो है आप देखते हैं कि किस तरीके के साथ इब्लीस जो है वो अपने हाकिमों के साथ जो है वो अपनी हुकूमत को चमका रहा है। आपको मालूम है जब दानियल दुआ कर रहा था तो जबराइल ने उसको जब उसके पास आया तो उससे क्या कहा था कि किसने मुझे रोका था? बोलिए। फारस के मोक्खल ने मुझे क्या किया था? वो रोका हुआ था। और मेरी मदद के लिए कौन आया था? वो यह माइकाइल आया था। अंदाजा ये कीजिए कि उम्मतों के ऊपर, कौमों के ऊपर, बादशाहों के ऊपर यह कितना बड़ा प्रेशर है। ये गवर्नमेंट जो है वो अपने कायम करना चाहता है। ये प्राइड जो है कौमों और उम्मतों के अंदर पाया जाता है। तो अंदाजा ये कीजिए कि किस तरीके के साथ जो है ये उम्मतें और कौमें और हुकूमतें जो है उसके कंट्रोल के अंदर है। और मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था कि जो है कसबी उन 7 पहाड़ों के ऊपर जो है वो बैठी हुई है। ये 7 पहाड़ जो है आपको ये दुनिया की कौमें हैं। अंदाजा ये कीजिए आने वाले दिनों के अंदर भी यही हालात होंगे और पीछे भी जो है वो ऐसे ही हालात आपको नजर आते हैं कि उनको 7 बड़ी कौमों का जो है वो सामना करना पड़ा है। उनकी जो है उनके सारे तरीकेकार को और उनके सारी नेचर को और उनकी सारी कुव्वत को जो है तबाह और बर्बाद करना ये इस्राएलियों को कहा था। और खुदावंद ने उनको ये बात कही थी कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आमीन। जब वो यरीहो में था तो क्या कहा गया था? जब नंगी तलवार लेकर जो है खुदा का फरिश्ता खड़ा था तो यहोशू ने क्या कहा था? तू हमारी तरफ है या दुश्मन की तरफ? तो उसने क्या कहा था? मैं इस वक्त जो है खुदावंद की फौजों का सरदार होकर आया हूं। लिहाजा खुदावंद खुद जो है उनके आगे आगे गया ताकि इन जो है हित्तियों को मार सके, जो खौफ और जो दहशत की अलामत बने हुए थे। इन जराजीसियों को मार सकें जो है प्राइड के अंदर थे। तो अंदाजा ये कीजिए कि इस्राएल को कितना बड़ा जो है वो बड़ा कौमों का मुकाबला करना था। और इस जब तक ये इनका मुकाबला नहीं कर पाते तब तक ये पूरे मुल्क कनान के अंदर काबिज नहीं हो सकते। तो गौर से सुनिए, हम भी जो है बादशाही को कायम करना चाहते हैं तो हम भी तो यही दुआ करते हैं, तेरी बादशाही आए। क्या दुआ करते हैं? तो फिर कैसे आएगी? बोलिए। किनको जो है हमने ज़ेर करना है? पहली कौम कौन है? फिर कौन सी कौम है? जर्जीसियों को मारना है। और ये कौन है? जो कहां पर रहती हैं? मट्टी के अंदर। जर्जीसी का क्या मतलब है?
जो dwelling in the clay, जो मट्टी के अंदर रहते हैं, जो दुनिया की ख्वाहिशों से जो है वो क्या हुए हैं, जो है वो लोट पोट हुए हैं, और इंतहाई इमोरलिटी जो है वो कौमों के अंदर पाई जाती है। आपको मालूम है कि किस तौर पर वो गवर्नमेंट्स को अपने इख्तियार में कर लेता है। इसके जरिए से आप देखते हैं कि किस तरीके से जो खुदा के खिलाफ कवानीन बन रहे हैं। इसका सबब क्या है कि ये जो है गवर्नमेंट जो है वो अपने तरीके से जो है ख्वाहिशों के मुताबिक आ रही है। नहीं, ये जराजीसी हैं जो पहाड़ जो है कौमों के दरमियानों में जो है कायम किए गए हैं। और आप देखिए कि किस तौर पर यूरोप, अमेरिका, इन ये जो है हुकूमतों के अंदर किस तौर पर इमोरलिटी जो है वो पाई जाती है, जो है होमोसेक्सुअलिटी जो किस कदर जो है दुनिया के अंदर जो है काम कर रही है, किस तौर पर जो है गे जो है कि दुनिया के अंदर फैल रहे हैं। ये जो लॉज जो है बन रहे हैं, ये शैतान हैं जो इस पहाड़ के ऊपर जो है जराजीसियों के पहाड़ के ऊपर जो अपनी हुकूमत जमाए हुए हैं। और जब तक आप जानते हैं गवर्नमेंट के अंदर जो है अच्छे से अच्छा एडवाइजर जो है, अमेरिका के अंदर बड़े बड़े अच्छे एडवाइजर जो है, इंटरसेसर जो है वो बैठे हुए थे, जिन्होंने गवर्नमेंट के लिए या खूब दुआएं की और जो है पूरी गवर्नमेंट को जो है अपने या कंट्रोल में रखा हुआ था, ताकि कोई ऐसा कानून ना बन सके जिसके जरिए से जो है कौमों तक जो है वो पैगाम ना पहुंच सके। जितनी बड़ी कौम है वो उसका पूरा जो है असर जो पूरी दुनिया के ऊपर जाता है। इसलिए तो आप जानते हैं कि जब मुखालिफ मसीह की गवर्नमेंट जो है सामने आएगी तो उसका पूरा असर जब वो दुनिया के अंदर आता है। इसलिए जो बड़ी कौमें हैं या जो सुपर पावर्स हैं, उनका जो है एक्ट या पूरी दुनिया के ऊपर असर अंदाज होता है। और शैतान कौमों, उम्मतों, हुकूमतों को कंट्रोल करता है, ताकि क्या हो सके जो है वो पूरी दुनिया को गवर्नमेंट के जरिए से क्या कर सके, कब्जा के अंदर जो है वो कर सके। और ये उसका तरीकाकार है। और उसने भी आपको मालूम है कि क्या तरीका इख्तियार किया है अपनी बादशाही को कायम करने का। बाइबल मुकद्दस में आपको जो है दानियल की किताब के अंदर मिलेगा कि किस तरीके से जो है नबूकदनेस्सर ने जो है वो रोया देखी थी। और उस रोया में उसने क्या देखा था, एक मूर्ति है जिसका सर क्या है, वो सोने का है, और उसका जो है सीना चांदी का था, उसका जो है शक्म जो है पीतल का था, और उसकी जो टांगे थी वो लोहे की थी, और उसकी जो है अपना पैर थे, पैरों की उंगली के कुछ लोहे के थे और कुछ मिट्टी के थे। और आप फिर क्या देखते हैं कि क्या हुआ उस यहाँ मूर्त के साथ। दानियल ने उसकी क्या की है, वो तफसीर बयान की, और वो उस ख्वाब की जब ताबीर बयान की तो पूरा जो है बाबल घबरा गया था। और उसने ये कहा था कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने कि ख्वाब भी बताया जाए और उसकी ताबीर भी बयान की जाए। और जब उसने ख्वाब बयान किया तो वो ख्वाब की ताबीर की किस तरह बयान करता है, जरा गौर से सुनिए। दानियल 2 बाब और उसकी 36वीं आयत में वो ख्वाब ये है और उसकी ताबीर बादशाह के हुजूर बयान करता हूँ। ऐ बादशाह, तू शहनशाह है जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही व दानाई और कुदरत और शौकत बख्शी है। और जहाँ कहीं बनी आदम सुकूनत करते हैं, उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हवाले करके तुझको उन सब का हाकम बनाया है। वो सोने का सर तू ही है, और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी, और चौथी सल्तनत लोहे की मानद मजबूत होगी। और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीजों पर गालिब आता है, हाँ जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। और जो तूने देखा कि उसके पांव और उंगलियां कुछ तो कमहार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, सो उस सल्तनत में तफरका होगा। मगर जैसा कि तूने देखा कि उसमें लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी। और चूंकि पांवों की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसलिए सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़ईफ होगी। और जैसा तूने देखा लोहा मिट्टी से मिला हुआ था और बनी आदम से आमेख्ता होंगे, लेकिन जैसे लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता, वैसे वो भी बहम मेल ना खाएंगे। और उन बादशाहों के अय्याम में गौर से सुनिए,
मैं आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ता अबद नेस्त ना होगी और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम ममलिकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी और वही अब तक कायम रहेगी। जैसा तूने देखा कि वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया और उसने लोहे और तांबे और मट्टी और चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े किया। खुदा ताला ने बादशाह को जो कुछ दिखाया जो आगे को होने वाला है, और ये ख्वाब यकीनी है और उसकी ताबीर यकीनी है। शैतान अपनी बादशाही को कौमों, मुल्कों, उम्मतों के जरिए से जो है वो कर रहा है। और दानियल की किताब में इन हुकूमतों को दरिंदों जो है के साथ तशबीह दी गई है, हैवानों के साथ तशबीह दी गई है। और आप ये देखिए कि जितने भी सुपर पावर्स आई हैं उनको हैवान ये कहा गया है। और जब आप मुकाशवा की किताब में पढ़ें तो वहां लिखा 5 तो हो चुके हैं, 6वां मौजूद है, 7वां अभी आएगा और उसका कुछ देर रहना जरूर है। और जब वो आएगा तो वो जो है 8वां होगा। तो गया आप ये देखिए कि वो गवर्नमेंट के जरिए से, जो बात आपको समझाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के जरिए से, हुकूमतों के जरिए से अपनी बादशाही को कायम करना चाहता है, अपनी दुनियादारी को चमकाना चाहता है, अपनी ख्वाहिशों को, जिंदगी की शेखी को, आंखों की ख्वाहिश को, जिस्म की ख्वाहिश को जब वो आम कर देना चाहता है, ताकि इस दुनिया के अंदर जब बदखलाकी, इस दुनिया के अंदर जब इमोरलिटी जो है वो उस कसरत से हो जाए। और आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है दुनिया जो है इसकी कैप्चर हो चुकी है। कुछ के कदम कदम के ऊपर जो है आपको प्राइड नजर आता है, कदम कदम के ऊपर आपको करप्शन नजर आती है। और से सुनिए, हम जानते हैं कि यूसुफ भी मुल्क मिस्र के अंदर जब वो हाकिम बना है, और जब वो हाकिम बना था तो किस कदर अमन और चैन था। काल होने के बावजूद भी कोई भूखा नहीं मर रहा था। लेकिन उसके दौर में लोग काल तो आएगा, लोग जो है खाने के लिए तरसेंगे। लेकिन याद रखिए कि जहां पर जो है रास्तबाज जो है बादशाही करते हैं, जहां पर वो हाकिम होते हैं, वहां पर क्या होता है? अमन, सुकून, चैन होता है। आमीन। और यही बात हम यह चर्च को सिखाना चाहते हैं, और इस चर्च को यह इस बात को समझना चाहिए कि वो इसके लिए जो है अपने आप को खड़ा करे। आमीन। खुदा का शुक्र है कि बड़े बड़े जगहों के ऊपर, हुकूमती लेवल के ऊपर, बड़े बड़े जगहों के ऊपर जो है रास्तबाज भी जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ हम जो है वो बहुत कमज़ोर है, ना होने के बराबर है। आप देखिए कि पॉलिटिशियंस किस तरीके के साथ जो है करप्शन के अंदर जब वो मुब्तला है। जब रास्तबाज पॉलिटिशियंस आपको दुनिया के अंदर काम मिलेंगे, और ज़्यादातर कौन आपको नजर आएंगे? बोलिए। हाँ, कैसे जो है सियासतदान नजर आते हैं? हाँ, जो मिट्टी के अंदर लोट पोट हैं, और ये जो है शैतान के काम को अंजाम दे रहे हैं। और जो खुदा के लोग हैं वो क्या करते हैं? वो कोशिश करते हैं कि सियासत से वो दूर रहें। ये जो है शैतानी काम जब नज़र आता है, लेकिन काश जो है जब रास्तबाज बादशाहियों के ऊपर वो नज़र आए। आमीन। जो है ऑफिस के अंदर जो है वो कायम कर दिए जाएं। और हम खुदा का शुक्र करते हैं, बहुत सारे जो मसीही लोग हैं वो जो है जिन जिन ऑफिस के अंदर है, या जिन जिन बड़े बड़े ओहदों के ऊपर हैं, वहाँ पर क्या है वो अच्छा काम कर रहे हैं। खुदा उन तमाम को बरकत दे। और जो इस जराजीसियों का सा काम कर रहे हैं वो सर कर लिए जाएंगे, वो जेर कर दिए जाएंगे, उनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इन 7 कौमों का नामो निशान क्या हुआ? बोलिए। मिटा दिया गया है। और इसी तरह जो है एक पत्थर बगैर हाथ लगाए काटा गया है, जिसकी बाबत पर जो है यशायाह की किताब में क्या लिखा है? सल्तनत लिखा है। उसके एक लड़का हमारे लिए क्या हुआ? आगे बोलिए। और सल्तनत उसके कांधे पर होगी, वो उसका नाम शहजादा होगा, और उसकी सलामती और इकबाल मंदी की कुछ इंतहा
نہ ہوگی. ایک لڑکا تولد ہوا ہے, سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. آمین. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرائسٹ کی سلطنت ہے, جو مسیح کی سلطنت ہے, اس میں سلامتی اور اقبال مندی پائی جاتی ہے, اس میں جو ہے کاؤنسلنگ پائی جاتی ہے, اس میں وہ جیب و مشیر خدا قادر اور ابدیت کا باپ ہے, وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. تو گویا اگر اس زمین کے اوپر جو ہے افراتفری ہے, جس کا مطلب یہ ہے ڈیول جو ہے اس پہاڑ کے اوپر براجمان ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے, اور ضرور ہے کہ اس کی بادشاہی کو نقصان پہنچایا جائے, اور اس کے لیے جو ہے دعائیں اٹھانی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ کس طور پر جو ہے دانیل جو ہے اس بادشاہ بابل کی کنگڈم کے اندر تھا. کیا جو ہے نبوکدنیزر کی بادشاہت جو ہے وہ اس کی قوت اور قدرت سے قائم تھی؟ نہیں. یہ تو پہلی بات خدا نے جو ہے اسے مقرر کیا تھا. دوسری بات دانیل جیسے بڑے وزراء وہاں پر تھے. ہاللیلویا. اور اس وجہ سے گورنمنٹ جو ہے اس کی قائم جو ہے نظر آتی ہے. ایسٹر جو ہے فارس کی مملکت کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ نظر آتی ہے. ایسی گورنمنٹ کے اندر جہاں پر ایسٹر پائی جاتی ہے, وہاں پر آپ دیکھیے یہودیوں کو کوئی نقصان نہیں ہے. آپ غور سے سنیے, جن گورنمنٹ کے اندر, جو گورنمنٹ اس دنیا کے اندر جو ہے دو چار کام کرتی نظر آئے گی, اس کا مطلب ہے وہ جارجسیوں کی گورنمنٹ جو ہے وہاں پر پائی جاتی ہے. پہلی جو قومیں جو ہے جیو اگینسٹ ہیں, جو مسیحیوں کے اگینسٹ ہے, جو امورلٹی جو ہے وہ قائم کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھیے جب ایسی سچویشن آپ دیکھتے ہیں, وہ آپ سمجھ لیجیے یہاں پر کرپشن یہ ہے زوروں کے اوپر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں پر کون سی قوم پائی جاتی ہے؟ جرجسی پائے جاتے ہیں. آپ اس کو اپنے گھروں کے اندر, اپنے خاندانوں کے اندر اپلائی کریں. آپ کے گھروں کی گورنمنٹ کیسی چل رہی ہے؟ آپ کے گھروں کی گورنمنٹ کیسی چل رہی ہے؟ کیا جراجیسی تو نہیں پائے جاتے؟ اس کو زیر کیا جائے. اس کو کیا کیا جائے؟ زیر کیا جائے. اس کے اوپر فتح پائی جائے. اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ فتح پائی جائے. جراجیسی کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ بولیے. ہاں جی بولیے. کہاں پائے جاتے ہیں؟ مٹی میں پائے جاتے ہیں. جسمانی نیت کیا ہے؟ بولیے. موت ہے. مگر روحانی نیت کیا ہے؟ زندگی اور اطمینان ہے. اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی کیا ہے؟ دشمنی ہے. کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے اور نہ ہو سکتی ہے. چنانچہ جہاں پر جسمانیت پائی جاتی ہے, جہاں پر نفسانیت پائی جاتی ہے, جہاں پر مٹی میں لوگ پائے جاتے ہیں, جہاں خاکی لوگ پائے جاتے ہیں, وہ لوگ اپنی زندگیوں کے اندر کیا دکھاتے ہیں؟ کیا ان کی زندگیوں سے ظاہر ہوتا ہے؟ وہ خدا سے دشمنی رکھتے ہیں. اور خدا نے اپنے دشمنوں سے کیا کہا ہے؟ ان کو نکال دیا جائے. ان کو کیا کر دیا جائے؟ بولیے. ان کو آؤٹ کر دیا جائے. نفسانی آدمی خدا کی باتوں کو کیا کرتا ہے؟ بولیے. نہیں سمجھ سکتا. یہ پالوس رسول نے کرنتھیوں کے خط کے اندر کہا ہے کہ نفسانی آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ نفسانی ہے. وہ خدا کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے. چنانچہ وہ جو ہے روحانی آدمی روحانی باتوں کو وہ پرکھ لیتا ہے. آمین. چنانچہ جہاں پر جسمانیت ہے اور جہاں پر نفسانیت ہے, جہاں پر بد اخلاقی پائی جاتی ہے اور جہاں پر کرپشن پائی جاتی ہے, جہاں پر ناراضگی پائی جاتی ہے, یہاں پر جو ہے گناہ پایا جاتا ہے, وہاں پر جراجیسی پائے جاتے ہیں. ان جراجیسیوں کو جو ہے جب تک دور نہیں کیا جائے گا, وہاں تک تب تک وہاں پر جو ہے حکومت قائم نہیں ہو سکتی ہے. جہاں جن جو ہے گھروں کے اندر اور جن قوموں کے اندر, جن امتوں کے اندر جراجیسی پائے جاتے ہیں, یہ پہاڑ جو ہے آپ کو نظر آتے ہیں. ضرور ہے کہ کالب کی طرح, یشوا کی طرح یہ کہا جائے یہ پہاڑ مجھے دے دیا جائے, میں اس کے پر غالب آؤں گا. ہاللیلویا. اگر آج آپ کو یہ ویژن دوں, اگر آپ کو یہ ٹارگٹ دوں کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک جراجیسی پائے جاتے ہیں, آپ اس کو کس
किस तौर पर गालिब जो है उसके पर कैसे गलबा पा सकते हैं? थ्रू द प्रेयर। दानियल ने क्या किया है? दानियल 21 रोज तक जो है वो दुआ करता रहा, फारस का मोकल को जो है वो आउट किया गया। दैन जो है खुदा का फरिश्ता जो है वो उसके पास आया। जो है जवाबात रुके हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट्स के ऊपर जो है वो कब्जा है, जो है हमारी फजाओं के ऊपर कब्जा है, इर्द गिर्द के ऊपर बड़ा बड़ा कब्जा पाया जाता है क्योंकि जराजीसी जो है पाए जाते हैं। गवर्नमेंट के ऊपर जो है प्राइड पाया जाता है। लूसीफर जो है उसके ऊपर उस पहाड़ के ऊपर विराजमान है। खुदावंद यीशु मसीह की जो है के नाम से, उसकी कुदरत के जरिए से उसको बादशाह मानने वाले लोग जो है उसके पर गालिब आ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब प्रोफेटिक और अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री के जरिए से इसके ऊपर गलबा हासिल किया जा सकता है। आप अपनी जिंदगी के अंदर रसूली या कलीसिया का पैशन अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए जो पूरी उम्मतों के अंदर फैल गए थे। हालेलुया। आपको पता है कि किस तौर पर जो है ये कलीसिया फैली है, इसकी रीजन क्या थी, वो क्यों कौमों और उम्मतों के अंदर फैल गई है, और उन्होंने किस तौर पर गवर्नमेंट्स को हिलाकर रख दिया है और गवर्नमेंट्स को जो है वो मुतासर किया है। उसका सबब क्या था? वो चर्च था जिसने मुतासर किया। हालेलुया। इस वक्त दुनिया के अंदर जो है चर्च जो है वो फैला है, तो उसके पीछे रूट क्या है? अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है। इसलिए बहनों भाइयों जागिए, कलीसिया बेदार हो। हमें कब्जा करना है, हमें बादशाही को कायम करना है। ये आप समझते हैं कि मैं यह बड़ा निजात याफ्ता और बड़ा तजर्बात रखता हूं, यह काफी नहीं है, बल्कि काफी क्या है कि कब्जा जमाया जाए। हालेलुया। यह करना क्या है? हमें कब्जा करना है। करना क्या है? यह गालिब आना है। हालेलुया। किन के ऊपर गालिब आना है? फियर एंड टेरर, दहशत के ऊपर यह कब्जा जमाना है। फियर के ऊपर कब्जा जमाना है। यह अफवाहों को जो है यीशु मसीह की खुशखबरी के जरिए से क्या करना है? उसे नेस्त करना है। यह और किसके जरिए से जो हम नेस्त कर सकते हैं? या यीशु मसीह की बादशाही को अपने अंदर दिखाकर, हालेलुया, और जिस्मानियत को दूर कर अपनी नफसानियत को दूर कर और इसको जो है सलीब के ऊपर जड़कर, और जब आप कोई शख्स जो है जरा जिस स्पिरिट के अंदर है उसको जब आप भगाएंगे, और ये उस वक्त भाग सकती है जब कोई शख्स अपने आप को मसीह के साथ मसलूब कर देगा। उसकी ख्वाहिशों और रगबतों समेत, जिस्म की ख्वाहिशों और उसकी रगबतों समेत अगर आप अपने आप को जब मसीह के साथ मसलूब कर देंगे तो क्या होगा? ये जब मगलूब हो जाएंगे और हम गालिब आएंगे, और आसमान की बादशाही हमारी जिंदगियों के अंदर नजर आएगी। और जो मट्टी के अंदर उसके साथ लोटपोट हो रहे हैं, जो लोटपोट हो रहे हैं मट्टी में, और वो गंदे हो रहे हैं, अपने आप को जो है जराजीसियों के साथ क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं। बेटे और बेटियों, जो खुदावंद ने कहा कि तू अपने बेटों को या उनकी बेटियों को ना लेना, ना उनकी बेटियां लेना। क्या करना? ठीक है, यह अपने आप को जो है रूहानियत के अंदर कायम रखना, जो है इस्राएली स्पिरिट के अंदर अपने आप को रखना। हमें इनको भगाना है, हमने इसके ऊपर कब्जा जमाना है। ये वादा है खुदा का कि एक बगैर हाथ लगाए पत्थर काटा गया है। यीशु मसीह जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ है, और वो पत्थर लगा उस मूर्ति के पैरों के ऊपर, और उसकी सारी गवर्नमेंट, उसकी सारी हुकूमत, उसका सारा इख्तियार पाश हो गया। ताबिस्तानी हवा की तरह भूसे की मानद वो उड़ गया। हालेलुया। उसका नामो निशान भी ना रहा। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जिन जिंदगियों के अंदर आसमान की बादशाही है, जिनकी जिंदगियों के अंदर यीशु मसीह बादशाह कायम है, और वो इकरार और ऐलान करते हैं कि मेरे अंदर यीशु मसीह यह रहता बसता है, और मैं जराजीसियों के ऊपर गालिब आऊंगा। जो होली स्पिरिट को जो है अपनी जिंदगियों के अंदर लेते हैं, जो स्पिरिचुअल माइंडेड हैं, जो रूहानी नीयत के अंदर चलते रहते हैं, वो नफसानियत को, जिस्मानियत को जो है वो क्या करते हैं? वो गारिद कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, गौर से सुनिए, यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया
की तरफ से है। ये इस बाप की तरफ से नहीं, वो उस झूठे बाप की तरफ से है। वो आसमानी बाप की तरफ से नहीं, किसकी तरफ से है? उस झूठे बाप की तरफ से है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जराजीसी ये गवर्नमेंट पूरी दुनिया को मुतासर कर रही है। ये ईमानदारों को मुतासर ना करने पाए। आप कहाँ पर भी क्यों नहीं हैं, आप अपने बिजनेस पर हैं, आप अपने घर में हैं, आप कहीं पर भी क्यों नहीं हैं, उसके असर को अपनी ज़िंदगी के अंदर ना लेने वाले हों। जो कुछ इस वक्त दुनिया के अंदर हो रहा है, अगर हम उसको सोचे भी तो रोंगटे खड़े हो जाती हैं। और वो इतनी गहरी और इतनी होलनाक और घिनौने और मकरू काम जो है वो इस पहाड़ पर बैठ कर कर रहा है, दिखा रहा है, जिसका हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, जिसको हम जो है ख्याल में भी नहीं ला सकते हैं। और ऐसा कुछ जो है वो इस पहाड़ पर बैठकर जब वो कर रहा है, तो क्या करने की जरूरत है? बोलिए। इस जराजीसियों को क्या करना है? बोलिए। हाँ, पहले अपने अंदर से जो आपका सामना करता है उसे खत्म करिए, और फिर ये टारगेट लीजिए कि खुदा अगर हमारे बेटे और बेटियों को परवान चढ़ाता है तो ऐसी जगहों के ऊपर खुदा उनको पहुंचाए जो रास्ते पर कायम रहकर, जहाँ दानियल की तरह, यूसुफ की तरह और दाऊद की तरह जो अपनी बादशाही पर कायम था, जिसने खुदा की बादशाही को कायम किया। हालेलुया। जिसने खुदा की जो है प्रोग्राम को जो है वो पूरा किया। इस तौर पर जो है खुदा की बादशाही को जो है प्लान में लेकर आइए, ताकि अपनी जिंदगी से खुदा के जलाल को जाहिर करें। ये एक तरीकाकार अपने खानदानों से स्टार्ट कर चर्च से स्टार्ट कर जो है फैला दीजिए। आमीन। जो है रसूली जो है ईमान को अपनी जिंदगियों के अंदर लेकर या दुनिया के अंदर फैलने का प्रोग्राम को या तश्कील दीजिए। जो है प्रोफेटिक जो है स्पिरिट को अपनी जिंदगियों में आने की दावत दें, ताकि हम इस दुनिया के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत को कायम कर सकें, और उसके झूठ को, उसके इख्तियार को और उसके मोकलों को जो है कौमों, उम्मतों और फिजाओं के अंदर हमारे इर्द गिर्द जो है अपनी छोनियां, अपने जो है कले बनाए हुए हैं, उनको ढा दें। आमीन। जो है बदखलाकी के अंदर, मकरूहात के अंदर हमें फंसाना चाहते हैं और बुरी लतों के अंदर फंसाना चाहते हैं, उनमें से हम निकल जाएं। और ये उस वक्त हो सकता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम जो है इस बात के लिए तैयार हैं कि एंटर होने के लिए तैयार हैं कि हम बादशाही को हासिल करेंगे। जो है गॉस्पेल ऑफ किंगडम को जो है अपनी जिंदगी के अंदर लीजिए। जो है इस बादशाहत की जो है खुशखबरी को अपनी जिंदगी में लेने वाले बादशाहत करेंगे। जो इस बात को नहीं समझते, मैं आपको फ्रैंकली कहता हूं, वो बादशाही को हासिल करने में आगे आप समझदार हैं, वो पीछे रह जाएंगे। हो सकता है वो बियाबान में ढेर हो जाए, हो सकता है वो यरीहू में ही रह जाएं और आगे मूव ना कर सकें। खुदावन ने हमें यह ये बादशाहत का प्रोग्राम दिया है, और ये उस वक्त होगा जब हित्तियों के ऊपर कब्जा करेंगे। हम उस वक्त जो है जो है इस बादशाहत को कायम कर सकेंगे जब जराजीसियों के ऊपर क्या करेंगे? गालिब आएंगे। जराजीसियों का क्या मतलब है? बोलिए। मट्टी में रहने वाले, डिवेलिंग इन द क्ले। तो अगर आप देखते हैं कि जो क्ले के अंदर हैं, तो सोच लीजिए वो जराजीसी हैं, वो नफसानी हैं और जिस्मानी हैं। और जिस्मानी नीयत क्या है? ये मौत है। और जिस्मानी नीयत क्या है? खुदा की दुश्मन है। आइए खुदा के दोस्त बने, ताकि जिस्मानियत को हम कला कमा कर सकें। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करना शुरू करें। Worship you, Jesus Christ. खुदा की बादशाही कायम होने जा रही है। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord.
تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو خداوند، تیری تعریف ہو۔ خداوند کا شکر کریں، خداوند کی تعریف کریں کہ یسوع ہمارا بادشاہ ہے۔ یہ پروکلیم کریں، یہ دعویٰ کریں کہ یسوع مسیح میرا بادشاہ ہے۔ اور جب تک کوئی یسوع مسیح کی بادشاہت کا کلیم نہیں کرتا، وہ اس گورنمنٹ کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ وہ دنیا کے پروگرام کا شکار ہو جائے گا، وہ دنیا کے سسٹم کا شکار ہو جائے گا، وہ دنیا کی خواہشوں کے اندر پھنس جائے گا۔ خدا ان ساری گورنمنٹ کو جو ہے تہس نہس کر دے گا، اسے تباہ برباد کر دے گا۔ آئیے اس کو تباہ برباد کرنے کے لیے ہم بھی اس کا حصہ بنیں، اسپرچل وارفیئر کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ خداوند میں اس جو مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہیں ان کا مقابلہ کروں گا، اور میں ان کے پر غالب آؤں گا، تاکہ یہ میرے اوپر غالب نہ آ سکے۔ میں زندگی کی شیخی کو اپنی زندگیوں سے دور کرتا ہوں، اس پرائیڈ کو، ان جو امتوں، قوموں اور ملکوں کے اختیارات کے اندر پایا جاتا ہے، جو ارد گرد پایا جاتا ہے، جس کے سبب سے دنیا جو ہے دنیا کے اندر اقدام خدا پھنس چکی ہے، لوگ دنیا کے اندر پھنس چکے ہیں۔ اے خدا ہمیں اس میں سے نکال لے۔ اے میرے لوگوں ان میں سے نکل آؤ، اے میرے لوگوں ان میں سے نکل آؤ۔ خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل آؤ۔ اگر آپ دنیا کے اندر ہیں، اگر آپ مٹی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، نکل آئیے۔ ان خواہشوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، نکل آئیے۔ یسوع مسیح کے نام کو لے کر دین جو ہے آپ اس کے پر غالب آئیں گے، اور یوں خداوند کی ستائش اور اس کی حمد اور اس کی پرستش کر سکیں گے۔ اور شیطان کا پروگرام یہ ہے کہ وہ ہمیں خدا کی پیروی سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اس کا پروگرام یہ ہے کہ وہ ہمیں اس میں پھنسانا چاہتا ہے، ہمیں ٹارگٹ لینا ہے کہ ہم نے غالب آنا ہے۔ اے خداوند آسمانی باپ، میں تو شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید اور تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں پہلے ہی سے اویئر کر دیا ہے کہ ہم نے جو ہے زندگی کی شیخی مارنے والے کو جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر نہیں آنے دینا، بلکہ اے خداوند خدا ان قوموں امتوں کے لیے ہمیں انٹرسیشن کرنا ہے، تاکہ اے خداوند خدا تیری بادشاہی قائم ہو سکے، تاکہ ایسے لا نہ بن سکیں جس کے ذریعے سے خداوند تیرے لوگ مشکل میں پڑ سکیں۔ اور اگر اے خداوند جن قوموں اور امتوں کے درمیان میں ذرا جیسی پا جاتے ہیں، ہم تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور اے خداوند خدا تیری قدرت سے اور خداوند روح القدس کی آگ سے، اس کی قدرت سے ان کے اوپر غالب آتے ہیں۔ اور اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں چرچ کو اس قابل کر تاکہ جراجیسیوں کے اوپر یہ قبضہ جما سکے۔ اے خداوند خدا اس دنیا کی خواہشوں کے اوپر اے خداوند خدا قابض آ سکے، ان گورنمنٹس کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ اے خداوند تیری گورنمنٹ کے اندر رہیں، تیری حکومت کے اندر رہیں، تیری بادشاہی کے اندر رہیں۔ اے خداوند اگر کوئی شخص تیری بادشاہی سے دور ہے، وہ تیری بادشاہی کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ تیری بادشاہی میں رہ کر اے خداوند جراجیسیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ آج کی ساری برکت کے لیے، اس کلام کے لیے کا شکر کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ یہ کلام زندگیوں کے لیے اے خداوند خدا قوت اور برکت کا باعث ہو، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔ کس کے اوپر غالب آنا ہے بولیے؟ جراجیسیوں کے لیے۔ وہ کون ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مٹی میں رہنے والے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کلیسیا میں رہنے والے۔ آمین۔ جو کلیسیا میں ہیں وہ ان کے اوپر غالب آئیں گے، جو کلیسیا میں نہیں ہیں وہ غالب نہیں آ سکتے۔ جو یا کہہ لیجئے جب اس کی بادشاہی میں ہیں تو وہ غالب آ سکتے ہیں، افسوس سے اس کی بادشاہی میں نہیں، وہ رہ جائے گا، وہ ان کو کھا جائیں گے۔ وہ آگے ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ان کی نظر میں ٹڈے معلوم ہوتے ہیں، وہ تو آپ لوگوں کو کھا جاتے ہیں۔ میں آپ کو ان پیغامات سے آپ کو بتاؤں، دنیا نگل جائے گی،
اس سے پہلے کہ دنیا ہمیں نگل جائے ہم ان کے اوپر غالب آ جائیں. Amen. God bless you.